I request everyone please turn on your cameras. Morning, sir. Good morning, Chirag. Good morning, sir. Good morning. Okay, so meanwhile others are joining. Okay. So anyone who joined for the first time today, just give me a brief introduction, like your name, native place, your educational qualification, and your upcoming SSB date. Aniket, yeah, you can start. Okay, good morning, sir, and good morning, everyone. My name is Aniket, and I am from Palampur, Himachal Pradesh. And my upcoming SSB is on 6 June, which is of NCC 56 entry. Okay, Preeti, Good morning, everyone. My name is Preeti Lodhi and I'm from Pune. I've completed my BTech in Civil Engineering like last year, and my upcoming SSB is on 14th of June in Jalandhar. okay, in Jalandhar. Okay, okay. So be ready with pen and paper. Okay, I'm going to flash the picture on the screen for around 30 seconds. After that, I will give you 5 minutes, 1 minute for box marking, and 4 minutes for story writing. After that, I will ask you to stop writing and you have to send the stories in the group. Okay. And after, meanwhile, I will allot you chess numbers and I will give you 5 more minutes after your story writing to prepare for the individual narration. So, individual narration अच्छे से prepare करना है. Then we will start the individual narration according to the sequence of chess numbers followed by the group discussion. Group discussion के लिए मैं कोई अलग से instructions नहीं दूंगा. You directly have to jump into the group discussion just as soon as last chess numbers individual narration is completed. है ना? After that, you have to nominate one person to give the common group story, and finally I will give you the individual feedback. किसी को कोई doubt? Anyone? ठीक है. So let me share my screen. So everybody is ready with pen and paper. My screen is visible. Yes, please. Okay. So the picture perception and discussion test instructions. I'm not going to read the instructions because all of you have practiced PPDT yesterday also. So we are just directly going to jump into the picture. ठीक है ना? ठीक है. So I'm going to flash the picture for around 30 seconds. Observe the picture carefully. ठीक है. Time up, everyone. Start writing. You have 5 more minutes to complete your story. A few moments later. Okay, stop writing. Time's up. Send your stories in the group. Write your name on the top of the sheet, and you have 5 more minutes to prepare for the individual narration. And your time starts now. A few moments later. Time up, everyone. Turn on your cameras. Okay. So I have allotted you chest numbers. For more clarity, I am repeating the chest numbers. Chest number 1 is Rohit, 2 Aniket, 3 Chirag, 4 Bajnath, 5 Hemant, 6 Vibhum, 7 Madhvi, 8 Karan, and 9 Preeti. Anyone having any doubt regarding their chest numbers? Okay, so first of all, we are going to start with the individual narration from chest number 1 to last chest number. After the individual narration of the last chest number, you have to start the GD. I'm not going to give you instructions separately, है ना? And finally, after the GD, you have to nominate one person to give the common group story narration. ठीक है? Anyone having any doubt regarding the procedure? Okay, chest number 1, you are ready for your individual narration? Yes, sir. Start your individual narration. Okay. Dear friends, I perceive 5 characters, 3 male and 2 female of age 24 to 26 having positive mood. The action of my story is new project planning, and the protagonist of my story is Suraj, who is a planning engineer in MNC. One day he got a project from his client, Jal Nigam. For that, he called a meeting of all his employees and discussed the like design, budget, tenure, and everything. Then he divided the work in his team accordingly and prepared a model scheme. Then after submitting the model scheme to the client, he get a first advance payment. Then he start working on the project, and he also personally assessed everything, and finally he completed the project and hand over the project to the client. Thank you.
Good morning, friends. As per the picture shown to us, I have perceived that there are 5 characters. 3 are male and 2 are females, and age bracket between 19 to 25 and mood positive. So the action of my story started at coaching classes. Prashant, 25, was working as a primary government teacher in GS in Kotputli, Rajasthan at GSS Balmandir. He observed that the youngster of his village did not getting the proper guidance regarding the competitive exams. So for that, he wanted to start a coaching academy. So firstly, he seek permission from his principal so that they can use school as their venue. And after that, he put some pamphlets and posters over the village and distribute them among the youngsters and motivate them to join this institution. And then he invited the persons and registered them and charged a very nominal price of fees from them. And after that, he also hired some of his friends and the teachers who were working in the school and allowed them subjects accordingly. And after that, soon the students are started clearing the exams and the result gives 100%. Friends, I have perceived 5 characters, three of which are female and 2 are male. Age are ranging around 22 to 24 and all are in positive mood. Action of my story is planning and organizing. Rajesh, a final year student, was doing BTech and in electronics, and after his planning for the final year project, he with his team decided on a whiteboard for the multiple projects. After the draft, they came to a conclusion after that they are going to have a project on making a mini PC. In that, they made multiple coding languages like Pi languages and JavaScript. After that, they got a microprocessor and Pi4 chip. They learned some insights through their seniors and teachers and made a PC keeping in mind the feasibility to use it anywhere. They got the batteries from the marketplace, got all the research paper done, and they published it and presented the current and future scenarios about it. Bajnath, you're on mute. You're not audible. Still you're not audible. Try to reconnect. Rejoin the session, Bajnath. Not audible. ठीक है. Meanwhile, Bajnath is joining. Hemant, you can start with your individual narration. You're on mute, Hemant. Wait. Like Bajnath, you are ready. Still Bajnath, you are not audible. ठीक है, Hemant, unmute yourself and start individual narration. In this picture, I perceive 5 characters, 2 male and 3 female. 1 male of 35 years and mood is positive, and other members are of 18 years and mood positive. Ram, a teacher in a school, he saw that his students were not performing well in the pre-boards. So he talked to his principal and want to arrange a meeting with his teachers, with that class teachers, and ask them that they should discuss the problem with the students and arrange the extra class and solve them. And he also asked them to make a group in which they could discuss the new conceptual questions, and he also talked to the parents to support them. As a result, the students were performing very well, and at the end, in the main exam, they scored good marks. Bajnath, you're available? भाई हो गया, तुम्हारा माइक जा चुका है भाई. Bajnath, better luck next time. Vibhum, you're on mute. Vibhum. Friends, I perceive 5 characters in the picture, in which 3 are male and 2 are females, and their mood is positive, and they are of the age bracket between 20 to 30. My main protagonist of the story is Aryan, who was a government teacher working in a government school. As the summer vacations are coming, so he decided to give holiday homework to his students. So he decided to give a project he asked them to create a project on how to beat plastic pollution. And he asked them to write the issues, causes, effects, and describing the ideas on plastic pollution. And he asked them to take help of Wikipedia and do a survey in the neighborhood also to create a project. And and the one who will create the project will be rewarded later. Next. Madhvi. Good morning, all of you.
From the picture, I have perceived 5 characters, 3 females and 2 males. All are in age bracket of 18 to 28. And the action of my story is career counseling. Aman, who is 28, was an expert at career counseling, and he was invited by his own school to give guidance to students. And he conducted a seminar, and a girl, out of curiosity, asked him that what field she should choose after 12, and what are some good colleges. So he appreciated the question and asked the girl about her interests, and he came to know that her interest is in biology. So he suggested everyone to go with their interest, and also conducted an aptitude test for the same, and then suggested and aware the students about various job fields and good colleges after 12 they can opt for, and various pros and cons with that job sectors in future. So students got a clarity in their Next. mind. Friends, from the given picture, I pursue three male character and 2 female character, age 26 and 22 respectively, all in positive mood. And the action of my story is teaching the concepts of geotechnical engineering to the students. And my story goes like this. Rahul was a faculty of geotechnical engineering in the Pune University. 3 weeks before the semester exam, he realized that there is a need to conduct the extra classes of geotechnical engineering in order to boost this performance of the students. So he used to conduct the extra classes after the college lectures. He also called the students during the preparation leave period. He took them to the various laboratories and cleared the practical knowledge of the students. He also told them to solve the concepts having maximum weightage. He also made them solve the PIQs. In this way, he taught them over the period of 3 weeks, and many of the students got distinction in the exam. Thank you. Next. Good morning, friends. So I've pursued three male characters and 2 female characters, age group between 24 to 35. The action of my story, the mood is positive for everyone. Action of my story is teaching and coaching. Megha, a brilliant college student who's pursuing civil engineering from the Pune University, has just begun the preparations for the civil services exams. She has started her coaching along with her studies for the final year. In her second attempt, she clears the exam for UPSC, and as soon as she clears it, she joins as the SDM in the district of Pune. She starts working with the organization and everything. She starts to maintain the law and order of the district, and this is how she goes ahead. Sir, it's now So audible. from the picture, we have perceived 5 characters. Wait, Madhvi. Bajnath is left. Yes, Bajnath, now you're audible. You can start. Yes, sir. From the picture, I perceive total 5 characters, 3 male, 2 male, all were in positive mood. Age group between 17 to 24-year-old. The action of my story is starting coaching classes. Rohit, B.Ed graduate from MMU University. After completing his graduation, he started the preparation of NET JRF. Along with, he talked with his friend and started a coaching classes in their location. With mutual discussion, he divided the work of starting coaching among his friends, and after mutual discussion they divided the subjects to teach among themselves. He himself took the responsibility of math and physics, and for that he prepared slides as well as he went to the class using real life examples. He taught the students. After that he solved some example to clear the students, also clear their doubts. After doing so, he was happy that he can help his student with his skill. At last he thanked his friends for their efforts. Thank you. So from the picture, So we have friends, as perceived majority of 5 persons characters. that there are 5 As characters, most of the and group all members are were suggesting that there were 5 characters, so we can go with with the theme that they How are many of you are and he is working as a teacher in this. I think that we should talk Gentlemen, about as most of the group members are there, as most group members are saying there are five members are there, so we can go with 5 members, 3 female, 2 female. is saying correctly that Let's go with the action plan. the 5 characters. Yes, so our main our action will be the teaching students in the village, as the hero is working in a primary school and he has conducted a free session for the students. Career counseling. But yes, you are saying nice point, Madhi. Madhi, you are saying nice point, but career counseling. mentioning to the point of Aniket, we can clearly see that from the picture that he has some pen in his hand. So I think that he is teaching students. Friends, I agree with your point. I would like to also tell you that if you look at the background of or something writing material in his hand. the background of the area is looking like that it is a classroom and they are trying to have a conversation, and most of the people are more or less around same age. If you say that Okay. more or
we can take as a coaching or as well as a college event like they are doing some event As most of the members are saying that there is a coaching classes or study going on, so we can go with the theme like coaching classes is there. Yes, so without wasting our time, we can add more action in that so that we can come to a common conclusion. Okay. So I would like to add coaching classes and then make a story of coaching Friends, class. I believe that we should add the theme of career counseling and then we should add actions onto it. Let's fix Yes. the theme Yes, now. agreed with the previous speaker. We can combine both two themes in single one. So our main action is with the conducting the free coaching classes for the student, and simultaneously he is also conducting career counseling for the students Okay. who are studying in class Exactly. 10. We can say that he is the teacher, but after the examination, he Yes, agreeing to the point of it, we can go with the theme that he is a teacher, he is a coaching teacher, but on free session he is Friends, conducting if we look career at the fact counseling. that most Okay, of the that stories that we have decided, Friends, I okay. would okay, we have decided, but I would like to include one more point since we have Okay. already all of us have stated that the age is around 18 to 24, and most of the age we have taken around max was 26. So being a teacher, taughting a person around 18 year is not appropriated. So I think we should take the 26. No, we are taking it What we can 24. do- age of No, 26 we could also take it as 28 or 32. Many people Okay, are we- taking Yes, agreed with the former speaker. So we can take it as the age of 27 we go years. with the story and 27 years. I am not Friends, I saying think the age it's is not the point of discussion. Now let's add more action to it. Personally, he observed that there is a lack of proper coaching academies or the proper guidance among the youth, so he decided to conduct a session over there. So firstly, for he the seeks students, permission We can from go with the Ankit's principal. point, like he is from rural area, so the students are lacking with the education quality. So Friends, he if being you look at the if you aware look at citizen. the background is not looking at a rural area. What we can do is that Exactly. he's a It is a- counselor and he's going to a college. He's trying to give them new perspective of Or they- the multiple they could- jobs that they are having right now. We can go to with the school fees. We college can final year school- shooting with that, we take it as a school guidance and after the engineering. So we can also take it as a school guidance for them. We can take the points of Karan that Friends, there is a what happened in society now after 12th, the children are really confused. So they go with the career counseling. I agree with the Colleges former go speaker. with We can I make agree a with your point. point. Now, what I like the counselor at his I think city we are- area. So he observed I think we are on right track. Please add invited action him. to What are the gentlemen. various career opportunities in various sectors like defense, government sectors, then in private Yes, sector. this is the main area. We can Rather- also put pros and cons of various job sectors. I think we are done with the story. Karan, you can conclude. Done with the entire story. I feel the need to conclude the story. Okay. And conclusion stop would be this like thing then. they got more clarity. Okay, Madhvi, you can conclude. No, wait, Vaishnath. Please don't nominate. ठीक है, मैं करवाऊंगा voting. ठीक है ना? Okay, first of all, Preeti, Vibhum and Heman. Start discussion. From the background, we can clearly say that either it is coaching or it's We can go school. like that after clearing 12th, as most of the students do not know about the other He is fields, counseling for the such career as and competition exams, the colleges. exams as well. So they are discussing about that. Also, one boy is raising a question also. Like we can see that he is raising a hand. Like he's asking his doubt. Other questions like so they talked about them and talked personally with them and with their parents too. After that, they choose their field that they like. So he is asking the main protagonist, that teacher, that what should be pursued in the future, which career we should opt, and and they all are asking their individual doubts regarding that particular field. Yes. Yeah, so basically he's guiding them for the career. And these people are not from the rural background. They are from the urban one. As we can see the whiteboard and everything. This looks more like a projector. Mhm. Okay, Also, we now, can- now everyone can participate. Friends, I believe we can have add already- more actions to it. We can add more actions to it since we have already stated that he's a guiding counselor in a college or a school, and now he's trying to give them the more perspective. We can add more actions that what other jobs that he's We can adding. also Firstly, he take like knows some of that. the I think reasons we are why already- students are we are- confused in their scenarios. I think we are already done with the story. I think anyone can give an overview of it. as well as Google Anyone Slides, they can can- guide them also. Okay, time up everyone. Time up, guys. Stop discussion. Now nominate one person to give the common group story. Sir, I would like to nominate Karan. Okay. What about others? Okay, sir, Karan. Karan will give. Okay. Karan, sir. Start the common group story. Thank you, friends. Thank you, friends, for nominating me. So there are total 5 characters, out of which
3 of them are male and two of them are female. The protagonist age is 26 and remaining character age is 22, and all are in the positive mood. And the action of our story is guiding someone and giving clarity about the career opportunities. So the protagonist, that is, we can say Rahul, is a faculty member, and he realized the need to guide the students about their future. So he first conducts one seminar and he guides them about various opportunities. He tells them about the various exams that they can clear. Also, he takes their aptitude test, and after the test, he got more insights about them, and he guides them personally and also their parents. And as a result, many of the students got clarity about what to do in future. Thank you. Okay, first of all, let's deep dive into the picture. Let's observe how many characters were there, how many females, males were there. Okay, let me share my screen. My screen is visible to all. My screen is visible. Okay. So if Yes. we see, there are like 5 characters. Okay, one male is here, male 28 positive. One female here, one female 20 positive. Another female 20 पॉजिटिव, अनदर फीमेल. ये तो मुझे फीमेल ही लग रही है, तुम लोगों को पता नहीं क्या लग रहा होगा. ठीक है ना. तो मैं 19 लेऊंगा और इसको या पॉजिटिव ले लो. ठीक है ना. एंड हियर वन मेल. ठीक है, मेल 20 पॉजिटिव. ठीक है. एंड दिस कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा लाइक अटेंशन ग्रैबिंग लग रहा है. ठीक है ना. तो वी आर गोइंग टू इनसर्कल दिस कैरेक्टर. वी आर गोइंग टू मेक आवर मेन प्रोटैगनिस्ट दिस कैरेक्टर. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क द कैरेक्टर्स इनसाइड द बॉक्स. अगर हम लोग को इसको मार्क करना हो किसी बॉक्स में, तो हम लोग कैसे मार्क करेंगे? ठीक है. सबसे पहले एक फीमेल आएगी यहाँ पर, फीमेल 20 पॉजिटिव. एक और फीमेल आएगी यहाँ पर, फीमेल 20 पॉजिटिव. ठीक है. यहाँ पर एक और फीमेल आएगी. Sir, your voice is breaking. नाउ इज इट विजिबल? Yes, द sir. स्क्रीन इज विजिबल. या ठीक है. ठीक है. 19 Yes. पॉजिटिव. ठीक है. और यहाँ पर एक और मेल कैरेक्टर है 20 पॉजिटिव, और एक कैरेक्टर ऊपर है जो हमारा मेन है. ठीक है. उसको ऊपर मार्क करना है. ठीक है ना. यहाँ पर मेल 28 पॉजिटिव. ठीक है. और इसको इंसर्कल कर दो. दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क द कैरेक्टर्स इनसाइड द बॉक्स. ये जो एज है वो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज. ठीक है. वो एज अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो. ठीक है. किसी को बॉक्स मार्किंग में दिक्कत? एनीवन? ठीक है. तो बॉक्स मार्किंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि अगर बॉक्स मार्किंग आपने सही से ऑब्जर्व किया पिक्चर, तो आपकी बॉक्स मार्किंग करेक्ट होगी. कितने लोगों ने 3 फीमेल्स ऑब्जर्व करी थी और 2 मेल्स ऑब्जर्व किए थे, एंड द ये बॉक्स मार्किंग उनकी सही थी. ठीक है ना. तो यू हैव टू ऑब्जर्व द बॉक्स वेरी केयरफुली. है ना. कुछ भी जल्दबाजी में मत करो. टेक योर टाइम. ठीक है ना. लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल फीडबैक. ठीक है. रोहित, रोहित कहां पर हो? Yes, sir. Yes, sir. रोहित, तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड. यू स्पोक फॉर अराउंड 48 सेकंड्स एंड योर स्टोरी वाज रिलेटेड टू न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग. न्यू प्रोजेक्ट Yes, से sir. रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे थे, लाइक तुमने जस्टिफाई भी कर दी थी पिक्चर, लाइक ही ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग एंड ही क्लैरिफाइड Yes, द sir. डाउट्स ऑफ हिज टीममेट्स एंड ऑल. तुम्हारी Yes, जस्टिफाइड sir. है. तुम्हारा प्रोजेक्ट Yes, का sir. थीम क्या था? सर थीम नहीं डाला, मतलब जल निगम का प्रोजेक्ट था. थोड़ा सा लाइक डिटेलिंग करो, डिटेलिंग करो. यस सर. ठीक है. या तो Yes. वो कॉर्पोरेट अगर एमएनसी में काम कर रहा है तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करो. कौन सा प्रोजेक्ट Yes, है, sir. किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो अगर चीजें डालोगे थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा. यस ठीक सर. है ना. जनरल आइडिया दे रहे हो. ठीक है. थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी लाइक प्रैक्टिकल चीजें डालो जो रियल लाइफ में हो रही है. किसी प्रोजेक्ट Yes, से sir. रिलेटेड है तो प्रोजेक्ट का नाम बताओ, प्रोजेक्ट में क्या टेक्नोलॉजी है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू सप्लाई इट. है ना. वो सारा कैसे Yes, डिलीवर sir. करोगे विद इन टाइम इंटरवल, वो चीजें डिस्कस करो. ठीक है. रेस्ट ऑफ योर थीम वाज गुड. ठीक है. योर जीडी पार्टिसिपेशन वाज आल्सो गुड. ठीक है. डिसेंट पार्टिसिपेशन था. 3 to 4 पॉइंट्स यू स्पोक ड्यूरिंग द जीडी पार्ट. यस अनिकेत, सर. अनिकेत. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब मैं ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आज अनिकेत का इंडिविजुअल नरेशन देखना. ठीक है. इसका इंडिविजुअल नरेशन इतना शानदार था ना कि लाइक ही ग्रैब द अटेंशन. अगर कोई सो भी रहा होगा ना तो भी जाग जाएगा कि भाई ये कौन बोल रहा है. ठीक है ना. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आप इंप्रेशन डाल सकते हो इन फ्रंट ऑफ एन असेसर. ठीक है. जब आप इंडिविजुअल नरेशन देने वाले हो, तो अनिकेत ने जैसे स्टार्ट किया था, चाहे वो उसका पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, लेकिन उसने अटेंशन तो ग्रैब कर लिया. अगर उसका इंडिविजुअल नरेशन अच्छा हो गया तो ये पॉजिटिव साइड में जाएगा. लेकिन अगर थोड़ा सा भी फंबल हुआ तो यही चीज इसके घाटे में भी जा सकती है. ठीक है. क्योंकि इसकी वॉइस लाउड थी, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था. अगर ये फंबल करता या वो करता तो यहाँ पकड़ा जाता. ठीक है. वहां पे गलती हो जाती. लेकिन लाइक ही वॉज वेरी फ्लुएंट. ठीक है. तो ऐसे आपको यूज करना है वॉइस मॉड्यूलेशन का. ठीक है. आपको इम्पैक्ट डालना है आपके इंडिविजुअल नरेशन, क्योंकि जीडी में आपको पता नहीं आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा. ठीक है. तो आपका इंडिविजुअल नरेशन, ये जो 60 सेकंड्स है, these 60 seconds are golden period for you in the PPDT. ठीक है. तो यहाँ पर you have to create an impression in front of an assessor. ठीक है. अनिकेत, your individual narration was really good. ठीक है.
आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज Yes, गो sir. थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड वॉच हिज इंडिविजुअल नरेशन। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर स्टोरी। ठीक है, तुमने क्या बोला Yes, कि sir. तुम्हारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। Yes, ठीक sir. है, और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को कोचिंग स्टार्ट करना अलाउड होता है, और वो भी सर वो तुमने फ्री सेशन स्कूल के। टाइप एक। नहीं नहीं, तुमने फ्री हाँ, सेशन यस नहीं, सर। तुमने एक नॉमिनल फी ली है। हाँ, हमें नॉमिनल फी ली थी, यस सर। ठीक है, देखो एक गवर्नमेंट टीचर है, उसको गांव में क्यों भेजा गया? ताकि वो वहां पर एजुकेशन को फैलाए। ठीक है, ताकि वो यस जो सर। अब भाई गांव के लोग अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो गांव में क्यों रहते हैं? अगर उनको कोचिंग की, तुम्हें वहां भेजा गया पढ़ाई करने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए बच्चों को, तुमने वहां धंधा शुरू यस शुरू कर सर। दिया कि भाई एक काम करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर तो ऐसे ही हैं, वेले हैं, ये तो कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, मैं एक काम करता हूँ इसी स्कूल की बिल्डिंग को यूज करके कोचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तुमने यस सर। पूरे एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी, जो कि रियलिटी में होता है। मतलब जो हमारे जो लाइक मैं केंद्रीय विद्यालय में था तो मेरा मैथ्स के टीचर थे, वो बोलते बेटा घर पे आओ कोचिंग में तुम्हें ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। ज्यादा अच्छे से कुछ नहीं, वो बस क्वेश्चन पेपर हमें दे देते थे। ठीक है, कि बेटा एक रात पहले हम क्वेश्चन पेपर दे देंगे, लगा लेना। ठीक है, तो ये तुमने वो इनडायरेक्टली ये किया कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गवर्नमेंट टीचर क्या होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसको यूज करके तुम्हें पढ़ाना है उन बच्चों को। ठीक है, तुम्हें पता है कि ये बच्चे यस पीछे सर। हैं, इन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है, यू हैव टू डू दैट। तुम क्या कर रहे हो, इनसे बोल रहे हो मैं एक नई कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हें स्कूल की टाइमिंग की जगह अब कोचिंग की टाइमिंग पे आना है, और तुमसे एक नॉमिनल चार्ज लूंगा। ठीक है, नॉमिनल चार्ज लेके भी क्यों एहसान कर रहे हो उनपे? ठीक है ना, उनसे फिर अच्छी फीस ले ही लो, जब तुमने शुरू कर ही दिया है स्कूल की बिल्डिंग में। प्रिंसिपल भी अपना कट ले रहा है। ठीक है, एक काम करो अनिकेत, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरे को भी कट मिलना चाहिए, कोचिंग तो तुम चला ही रहे हो स्कूल में। एक काम करो और शादी वादी के फंक्शन भी करा लो स्कूल में। ठीक है, अगर कुछ हो तो गाँव तो है ही अपना, कौन ही आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, घर बना लो इसको, एक काम करो मेरे प्रिंसिपल ऑफिस में एसी लगाओ, यहीं सोया करो आके। ठीक है ना, समझ आ रहा है अनिकेत? ठीक है, यस सर। तुम्हारी थीम अच्छी है, लेकिन द वे यू स्टार्टेड, तुम्हें लग रहा है वो गाँव के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे या उनका तुम सर देखो। एक्चुअली तभी फिर मैं जीडी में वो काउंसलिंग के लिए इन्फ्लुएंस हो हाँ, गया, मेरे ठीक को है, लगा कि नहीं काउंसलिंग का ठीक है। देखो तुम्हारी थीम बहुत अच्छी है, स्टार्टेड अ कोचिंग क्लासेस, लेकिन तुमने जो अपने प्रोटैगनिस्ट को एक रोल दिया था ना, वो उस रोल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। या तो तुम उसको बोलते कि वो एक आईआईटी ग्रेजुएट है। ठीक है, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड ही वाज पैशनेट अबाउट टीचिंग। ठीक है, तो उसने देखा कि यार बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा फीस पे कर रहे हैं, तो ही वांटेड टू ब्रिंग अ सोल्यूशन फॉर दोस पीपल हु कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव कोचिंग्स। ठीक है, तो वो एक जैसे ये जो फिजिक्स वाला का वो है ना स्टार्टअप है, फिजिक्स वाला पे बना देते स्टोरी। ठीक है ना, उसको बना देते हीरो, उसने कोचिंग स्टार्ट करी, उसने यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्सेज लॉन्च कर दिए, फिर उसने धीरे धीरे ऑफलाइन में शिफ्ट किया, ऑफलाइन में उसने नॉमिनल चार्जेस पे उसने फीस ली। लेकिन तुमने जो द वे यू स्टार्टेड, उसका रोल कुछ और होना चाहिए था। अगर उसको गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बना रहे हो तो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, वो धंधा शुरू ही नहीं कर सकता, वो कोचिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। दे आर नॉट अलाउड टू गिव कोचिंग्स, वरना फिर बच्चा स्कूल क्यों जाएगा? क्योंकि तुम तो उसको फोर्स करोगे कि बेटा अगर पास होना है तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, है ना, चाहे तुम स्कूल रोज आओ, यस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉन्ट्रडिक्शंस है। ठीक है, योर थीम इज रियली गुड, बट द वे यू इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर वाज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, चूज द प्रोफेशन ऑफ द कैरेक्टर वाइजली। ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अदरवाइज योर एक्शंस पार्ट वाज रियली गुड, थीम भी अच्छी है, बस ये जो जस्टिफाई कर रहे हो ना, ये जो स्कूल वाला, ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, रेस्ट योर जीडी ओके सर। पार्टिसिपेशन वाज आल्सो गुड। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे से मतलब अडेप्ट किया, तुम्हें पता चल गया था कि तुमने एक गलती कर चुकी है, तो फिर तुमने ये नहीं किया कि अब मैं जीडी में शांत रहूंगा, तो तुम लोगों ने क्या किया कि यू अडेप्टेड टू द सिचुएशन, गो विद द फ्लो, कि ठीक है यार तुम करियर काउंसलिंग पे बनाना चाहते हो, लेट्स मेक अ स्टोरी रिगार्डिंग दैट एंड लेट्स ऐड एक्शंस टू इट। वो तुम्हारा अच्छा पार्ट था। ठीक है ना अनिकेत? ओके यस सर। चिराग, चिराग, यस सर। चिराग आज फ्लो नहीं था इंडिविजुअल नरेशन में, रियलाइज किया ओके था? सर। हाँ सर, शुरुआत में वो 3 फीमेल भूल गया था तो इसलिए। आज क्या रीजन क्या था? आज कल भी तुमने यही बोला था कि आज कल नहीं मैं नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो नहीं, गया था, आज आज कोई रीजन नहीं, नहीं नहीं, आज कोई रीजन नहीं था सर, वही जो नरेशन था वही नरेट किया। मल्टीपल टाइम्स। जो मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अगर 5 मिनट दे रहा हूँ, यू हैव टू स्पीक योर स्टोरी 4 टाइम्स एटलीस्ट। रट्टा मार दो राइट सर। पागलों की तरह। ठीक है, राइट पागल हो सर। जाओ कि गुड मॉर्निंग एवरीवन इन द गिवन पिक्चर सो एंड सो, एंड ऐसे करके बिल्कुल रट्टा मारो 5-6 बार। ठीक है ना, कोई देखता है तो देखने दो, अगर वहां पे एसएसबी में कोई देख रहा है, ये देखो कैसा पागल है, कैसे रट्टा मार रहा है, बोला जब स्क्रीन इन हो जाओगे तब बोला और भाई कैसे हो, कैसा लग रहा है घर जाते हुए। ठीक है ना, तो इतनी बुरी तरह रट्टा मारो, समाज की चिंता नहीं करनी। ठीक है, तुम स्क्रीन इन हो जाओगे फिर बोलेगा यार अगली बार मैं चिराग ने ऐसे किया था, अगली बार मैं भी रट्टा मारूंगा। ठीक है, तभी स्क्रीन इन हो पाऊंगा। ठीक है ना, तो फ्लो में तुम्हारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारा ये जो यस। इंप्रेशन क्रिएट करने का 60 सेकंड्स का गोल्डन पीरियड है, इसको तुम क्यों यूटिलाइज नहीं करना चाहते? यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। ये मत सोचो कि यार मैं रट्टा नहीं मार पाता, मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, अपने आप को लिमिट मत करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। रट्टा तो बहुत छोटी चीज है। ठीक है ना, तो रट्टा मार दो वो 5 मिनट के लिए और 1 मिनट का नरेशन दे दो, खेल खत्म। ठीक है, अनिकेत ने वो जो स्कूल वाला टीचर बनाया था ना, वो मैं इग्नोर कर दूंगा।
क्योंकि उसका इंडिविजुअल नरेशन अच्छा था, फ्लो अच्छा था और उसका थीम भी अच्छा था, स्टार्टिंग अ कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो उसका वो एक छोटा सा गलती मैं माफ कर दूंगा कि उसने गवर्नमेंट टीचर ले लिया। ठीक है, वो उसको माफ कर दूंगा क्योंकि इसका जीडी पार्टिसिपेशन भी अच्छा था। ठीक है, तो फंबल मत करो इन योर लाइक योर इंडिविजुअल नरेशन। ठीक है ना, फ्लो तुम्हारा ब्रेक नहीं होना चाहिए चिराग। योर स्टोरी वॉज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। क्या प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग? सर कॉलेज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, इंक्यूबेशन सेंटर में प्रिपेयर कर रहे ये थे, तुमने मिनी कब, पीसी। ये कौन सी लाइन में इंट्रोड्यूस किया था कि दे आर वर्किंग ऑन अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फाइनल सर इंक्यूबेशन एंड ऑल? फर्स्ट सेकंड लाइन में, एक थर्ड बार फिर लाइन से में कुछ। स्टोरी बताओ। Rajesh, a final year BTech electronics student, was planning a final year project with his team. In the whiteboard, they made a draft, and after consulting each other, they decided to make a mini PC. इंक्यूबेशन कहाँ था? सर वो इंक्यूबेशन मेंशन नहीं है, मेंशन अच्छा, करता ठीक है हूँ। ना, तुम्हारे वो स्टोरी में देख लेना और तुम्हारे टाइटल में भी डाल दो कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंक्यूबेशन और समथिंग प्रोजेक्ट, बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी तुमने नहीं डाला टाइटल में, एक्शन में। ठीक है ना चिराग? सर वो ताकि स्टोरी में पता चले कि एक्चुअली क्या प्लान है। डोंट वरी, यहाँ पे ट्विस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कि सस्पेंस बना रहे हो कि सर आप चिंता मत करो, आपको स्टोरी में मिलेगा। ठीक है, आप बस अभी तो एक्शन में आपको बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, टीजर दूंगा, फिर मैं आपको स्टोरी में बताऊंगा क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पर बता दो भाई, क्या पता तुम्हें 20 सेकंड पे नेक्स्ट बोल दे, तुम बोल रहे हो यार मैं तो टीजर ही दिया था, वरना स्टोरी में इंटरेस्टेड ही नहीं है वो। ठीक है, यू नेवर नो यस सर। कि भाई उस असेसर का मूड कैसा है। क्या पता तुम सोच रहे हो कि मैं इंक्यूबेशन और इतनी टेक्निकल टर्म्स बाद में यूज करूंगा, 20 सेकंड तक बोलता है, जैसे तुमने इंट्रोड्यूस किया ना कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई हैव परसीव्ड 5 कैरेक्टर्स, 3 फीमेल्स 2 मेल्स इन द एज ग्रुप बिटवीन 20 टू 25, ऑल वर इन पॉजिटिव मूड। यहाँ पर भी नेक्स्ट बोल देते हैं भाई, गोवा में अभी बहुत लोगों के साथ पीएसबी में ये हुआ है। ठीक है, तो डोंट वेट। ठीक है, जितना क्लैरिटी ला सकते हो असेसर के माइंड में, उतना जल्दी क्लैरिटी लेके आ जाओ कि सर ये जो पिक्चर है इसके अकॉर्डिंग ये है, और मेरा जो थीम है वो फाइनल ईयर बीटेक प्रोजेक्ट पे है, उसमें वो लोग कैसे काम करते हैं उस पे मेरा एक्शंस होंगे। ठीक है ना चिराग? ठीक है, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो चिराग, है ना, जीडी में थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करो। यू गेव 2 to 3 पॉइंट्स। ठीक है, जो मुझे सुनाई दिए क्लियरली। बैजनाथ, Yes, sir. बैजनाथ तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड। यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू कोचिंग क्लासेस, तुम्हारा ठीक था। ठीक है, देखो अब इसमें इसने कोई प्रोटैगनिस्ट को कोई गवर्नमेंट स्कूल टीचर नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, चलेगा, ऐसा चलेगा। ठीक है ना, तुम गवर्नमेंट स्कूल का पैसा भी ले रहे हो और तुम्हें प्राइवेट पैसा भी चाहिए, मतलब तुम हो पैसे के लालची। ठीक है, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, वो तो यही मान के चलेगा कि भाई इसको गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं पूरी कर रहा। ठीक है, बैजनाथ ने बनाया कि वो बेचारा अनएम्प्लॉयड था, उसने सोचा कि कोचिंग ही खोल लेते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस गेन करता है कि हाँ भाई उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस था कि उसके पास कुछ करने को नहीं, लेट्स स्टार्ट टीचिंग, वो पैशनेट अबाउट टीचिंग। ठीक है ना, उसने कोचिंग स्टार्ट कर दी, तो एक अनएम्प्लॉयड बंदा करेगा, समझ आता है। तुम गवर्नमेंट टीचर भी हो और तुम कोचिंग भी स्टार्ट करो, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, वो जो होता है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो आ जाएगा। ठीक है ना, फिर तुम स्कूल में क्यों ही पढ़ाओगे, क्यों ही जाओगे स्कूल में, बोलो बेटा शाम को आओ कोचिंग टाइम पे, ये मॉर्निंग में तुम्हें खाना खाने आता हूँ स्कूल में। ठीक है ना, और जीडी पार्टिसिपेशन बैजनाथ, तुम्हारा जीडी पार्टिसिपेशन वाज रियली गुड। मैं तुम्हें बस एक सजेशन दूंगा कि गिव अदर्स चांस टू स्पीक। तुम्हारे 2 पॉइंट्स के बीच में यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 कैंडिडेट्स चांस टू स्पीक। है ना, आई नो तुम्हारे पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बट यू हैव टू गिव अदर्स चांस टू स्पीक। अपने 2 पॉइंट्स के बीच में या तो 2 का गैप रखो, 3 का गैप रखो, 4 का रखो, फिर 2 का रखो, फिर 1 का रखो, वेरिएशन लाते रहो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कोई प्लानिंग के साथ तुम उतरे हो मैच में। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। हेमंत, हेमंत, Yes, sir. हेमंत आज फ्लो नहीं था, पता नहीं, ऐसा लग रहा है रट्टा ही नहीं मारा तुमने आज। ठीक है, रट्टा मार ले तो हेमंत। हेमंत को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूँ आज फ्लो में क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, फ्लो क्यों नहीं बन रहा था ड्यूरिंग योर इंडिविजुअल नरेशन? कुछ बोलोगे भाई मेरे? कुछ तो बोलो। क्या, मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, प्रॉब्लम क्या थी कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मैं रट्टा नहीं मार पाता, कि ये मेरा शुरुआती मतलब सेकंड पीपीडीटी है इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, कुछ तो बोल दे मेरे भाई। सर वो रट्टा मारने में मतलब प्रॉब्लम होती है, मतलब ठीक है। एक बार में मतलब सेम स्टोरी नहीं बोल पाते। नहीं बोल पाते ना, एक काम करो, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आपको वो 60 सेकंड्स बोलने पड़ेंगे। देखो एनडीए इज गोल्डन अटेम्प्ट, एनडीए के लिए तुम्हें अगर रट्टा भी मारना पड़े मार दो। ठीक है ना, ये मत सोचो कि यार मैं रट्टा नहीं मार पाता या सेम स्टोरीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं कर सकता। लाइक बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू आर नॉट एबल टू फ्लुएंटली गिव योर इंडिविजुअल नरेशन। ठीक है ना, अपने आप को लिमिट मत करो। ठीक है, ये 60 सेकंड्स तुम्हें, देखो जीडी में तुम बोल नहीं पा रहे और तुम्हारा लाइक इंडिविजुअल नरेशन में फ्लो नहीं बन रहा, तो तुम इम्पैक्ट कहाँ डालोगे? समझ आ रहा है हेमंत? Yes, sir. ठीक है, तो वर्क अपॉन योर फ्लुएंसी।
फ्लुएंसी और इंडिविजुअल नरेशन पे काम करो। यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू लाइक जो स्टूडेंट्स है वो बोर्ड्स में परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। आज पता है ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे जो टैट स्टोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट 1 है ना, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टैट स्टोरीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो वीडियोस नहीं देखे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अनिकेत ने भी ये प्रॉब्लम की, उसने एक गवर्नमेंट टीचर से कोचिंग खुलवा दी, ठीक है। हेमंत ने क्या किया, उसने क्या किया कि वो जो बोर्ड्स प्री बोर्ड्स में बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए थे तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है। वाई और लाइक गड्ढा खोद के क्यों भर रहे हो? तुमने ये रियलाइज किया कि जो जो टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है भाई, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत क्या है? उसने जब उसको टाइम था तब उसने क्यों नहीं पढ़ाया, है ना? बच्चों के प्री बोर्ड्स का वेट क्यों किया कि बच्चों के प्री बोर्ड्स में जब गंदे मार्क्स आएंगे तब मैं एक नया इनिशिएटिव लूंगा, तब मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा। अदरवाइज बच्चा अगर अपने दम से पास हो जा रहा है तो अच्छी बात है। समझ आ रहा है हेमंत? ठीक है, यू आर गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तुमने क्या किया, एक हीरो को बनाने के लिए तुमने बच्चों को वीक कर दिया। मतलब बच्चों को मैथ्स में फेल करा देता हूँ, फिर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ही विल एंटर इनटू द स्टोरी, और फिर वहां पे वो क्या करेगा, बच्चों चिंता मत करो तुम्हारा टीचर वापस आ चुका है, ठीक है। फिर वो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेगा, फिर उनको मैथ्स में अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, फिर फाइनली आफ्टर प्रिपरेशन दे विल गिव देयर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड दे विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब तुमने गड्ढा खोदा और फिर भर दिया। समझ आ रहा है? यू आर क्रिएटिंग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, यू आर क्रिएटिंग और गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना हेमंत? ठीक है। एंड जीडी पार्टिसिपेशन नॉट अप टू द मार्क, शांत रहते हो बिल्कुल, ठीक है। मुझे समझ आ रहा है कि ये लोग ग्रेजुएट लेवल के बंदे हैं, लेकिन भाई एनडीए वाले खतरनाक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे मेन वर्कशॉप में एनडीए के लोग हैं, ठीक है। एनडीए वाले खतरनाक लेवल पे बातें कर रहे हैं, वो लोग ग्रेजुएट्स को पीछे छोड़ देते हैं। द वे दे डिलीवर लेक्चरेट्स, ठीक है, ऐसा शानदार तरीके से लेक्चर डिलीवर करते हैं कि मुझे भी शर्म आ जाती है कि मैंने तो अपनी तैयारी के टाइम पे मैंने ऐसा कभी डिलीवर नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब आपको अटेंशन ग्रैब करने को मजबूर कर देंगे। तो एनडीए लेवल पे ये मत सोचना कि यार ये लोग तो बड़े लोग हैं तो इनके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे। तुम्हें भी उस लेवल पे आना पड़ेगा। तुमने देखा होगा ना कि जब अपन बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो अपन लोग बड़े लोगों के साथ खेलने जाते थे, तो तुम जब बड़े लोगों के साथ खेलोगे ना तो जो तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, और वापस तुम अपने लेवल के लोगों के साथ खेलने आओगे तो तुम हीरो बन जाओगे उनके बीच में। तुम्हारे को जब खेलने को मिलेगा अपने एज ग्रुप के साथ तो तुम उनको साथ खेल दोगे। बोले बेटे इधर आओ, तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कोचिंग कैसे स्टार्ट होती है, ये सारे आइडियाज तुम्हें इनसे मिलेंगे, एक्शंस भी तुम्हें इनसे मिलेंगे, ठीक है ना। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक है। जो इनके एक्सपोजर है, एक्सपीरियंसेस है, उनसे सीखो, ठीक है ना हेमंत? ठीक है ना, जीडी में पार्टिसिपेट करो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना। एनडीए में तो आजकल बहुत अच्छे से तैयारी करके आ रहे हैं बच्चे। अब वो जमाना चला गया कि शांत रह के काम हो जा रहा था, ठीक है ना। विबूम, यस सर। विबूम योर इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड। थोड़े से पॉजेस आ रहे हैं बीच में, ठीक है, पॉजेस पे काम करो। ये बीच में अननेसेसरी पॉजेस नहीं आने चाहिए। यू स्पोक फॉर अराउंड 50 सेकंड्स, ठीक है। यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू हॉलीडे होमवर्क, ठीक है। तुम्हारा जो मेन टीचर होता है वो प्रोजेक्ट देता है उनको, शायद ऐसा कुछ है ना, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल बताओ। तुमने ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, ठीक है। तुम बस डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो टीचर सामने खड़ा था, उनके लाइक समर हॉलीडेज शुरू होने वाले थे तो वो उनको फाइनली वो एक प्रोजेक्ट अलॉट करता है और फाइनली वो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उनको रिवॉर्ड भी दिलाते हो, ठीक है। तो मत करो, थोड़ा सा और इसको इन्वॉल्व करो। जो तुम्हारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका बस यही काम है कि वो बस प्रोजेक्ट दे देगा, वो तुम्हारा उसमें मैं हाँ एक्चुअली नरेशन में मेरे को ऐड करना था कि वो रिगार्डिंग रूट्स कॉजेज जो भी था पोल्यूशन का, उसके बारे में कैसे उसको हैंडल करें, टैकल करें, उसके बारे में लिखना था, बट वो मैंने मेंशन नहीं किया स्टोरी में। वो मेंशन करना पड़ेगा ना। मुझे थोड़ी सपना आएगा कि विभूम ने क्या लिखा है, क्या सोच रहा है वो, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक यार। अगर तुम जब तक सामने वाले को नहीं बताओगे अपनी क्वालिटीज, यार मुझे थोड़ी पता कि तुम कैसे हो इंटरनली, है ना। तुम जितना दिखावा कर सकते हो उतना करो, जितनी क्वालिटीज को आप शो कर सकते हो उतना बेटर रहेगा, ठीक है ना। यू हैव टू प्रोजेक्ट ऑल दीज क्वालिटीज विच यू हैव। सबके पास क्वालिटी होती है, बस इट इज ऑल अबाउट कि आप प्रोजेक्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट कर लिया आप रेकमेंड हो जाओगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं होगी, दैट्स इट, सिंपल, है ना। तो थोड़ा सा और इन्वॉल्व करो, एक्शंस और डालो, ठीक है। अपने मेन प्रोटैगनिस्ट से और काम कराओ, ठीक है ना। जीडी पार्टिसिपेशन तुम्हारा सेम था जैसा हेमंत का था, ठीक है भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना विभूम, ठीक है। 400-500 किलोमीटर दूर है तुम्हारा सेंटर, ठीक है ना। ऐसे ही घूम के वापस आ जाओगे, घर वाले पूछेंगे बेटा क्या किया, मम्मी पापा जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, अच्छा थोड़ी लगेगा। माधवी, माधवी और इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड। यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग, अच्छी स्टोरी थी तुम्हारी। थोड़े से एक्शंस और डिटेल में डालो, ठीक है। और लाइक तुम्हारा स्टोरी भी अच्छा था और जीडी पार्टिसिपेशन में मतलब तुमने इनिशिएटिव भी लिया, ठीक है। मतलब अच्छा पार्टिसिपेशन था, बट यू कैन पार्टिसिपेट मोर, थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करो। जैसे वैजनाथ है, वो एक्सट्रीम में पार्टिसिपेट कर रहा था, तुम उसमें मॉडरेट में पार्ट कर रहे थे, थोड़ा सा और अपना उस लेवल पे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना।
लाइक यू गेव 2 to 3 पॉइंट्स जो मुझे क्लियरली सुनाई दे रहे थे, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर गुड माधवी, ठीक है। करण, Yes, sir. करण योर इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड, थोड़ा से फिलर्स आ रहे हैं बीच में आ रहा था, ठीक है ना। एंड योर स्टोरी वाज रिलेटेड टू टीचिंग द कांसेप्ट्स ऑफ जियो टेक्निकल कुछ था, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस लेना। Yes. ये बताओ उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की क्या जरूरत पड़ी? In order to boost their performance. बूस्ट देयर परफॉर्मेंस। देखो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने का मतलब है कि आपने पहले अच्छे से काम नहीं किया। अगर आपने पहले से ही उसको अच्छे से काम किया होता तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो तुम्हारी स्टोरी है ना उसमें जस्ट यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द पिक्चर कि ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, और ज्यादा तुम इसमें क्या ही एक्शन डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तुम कर सकते थे, जैसे मैं एक वो जो बेस्ट स्टोरी है ना मेरी, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट, उसको मैं यहाँ पर कैसे चिपकाऊंगा, देखो, ठीक है। Like Karan was BTech final year student in IIT Madras. He was given the responsibility to organize the upcoming cultural fest. So he informed his society members and he also went to class to select the volunteers from the junior years. And he also got the positive response from the juniors. And like वो जो एक बच्ची हाथ खड़ा कर रही है ना, she is like a volunteer from the junior years. She volunteered for helping him to organize the cultural fest. ऐसे करके you can write the story. ठीक है। अब इसमें तुम बहुत सारे एक्शंस ऐड कर सकते हो कि ही विल डेलीगेट द टास्क टू द टीम, ठीक है, टू द जूनियर्स वॉलंटियर्स, लाइक डेकोरेशन ऑफ द वेन्यू, गेटिंग परमिशंस फ्रॉम द अथॉरिटीज, लाइक फूड एंड रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट्स, लाइक इवेंट्स का डिजाइनिंग, स्पॉन्सरशिप, अ लॉट ऑफ एक्शंस आर इन्वॉल्व। तुम यहाँ पर तुम्हारी स्टोरी में क्या, यू आर जस्ट डिस्क्राइबिंग कि वो क्लास में करके क्या कर रहा है, ही इज जस्ट टेकिंग अ लेसन और टेकिंग अ क्लास। उसमें ज्यादा एक्शन तुम डाल नहीं पाओगे, है ना। यू कैन जस्ट टेल कि वो कौन से टॉपिक्स के बारे में बता रहा था, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहा था। तुम ये बोल सकते हो कि ही टुक स्टूडेंट्स फॉर अ एजुकेशनल टूर आउटसाइड। तुम कहीं स्कूल टूर पे ले जाओ, कॉलेज टूर पे ले जाओ, इंडस्ट्रियल टूर पे लेके जाओ, वहां पे ज्यादा एक्शन आ सकते हैं, ठीक है ना। कर तुमने भी कल वो कॉन्सेप्ट वाली स्टोरी वीडियोस नहीं देखी ना? नहीं. देखी है? देखो नहीं. मेरे को पता चल जा रहा है क्योंकि बिकॉज यू हैव नॉट वॉच दोज वीडियोस, दैट्स व्हाई यू आर लैकिंग, ठीक है। वो अगर तुमने कल नहीं देखा, कल की पीपीटीटी से पहले अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं वो क्लासेस लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल टेक दी कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर 2 days, और मैं नहीं चाहता वो 2 days कॉन्सेप्ट में चले जाए। मैं चाहता हूँ तुम्हारी जितनी पीपीटीटी हो जाए उतना बेटर। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो थ्रू दोज वीडियोस, अदरवाइज आई विल टेक 2 classes ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड बेस, ठीक है ना। करंट योर पार्टिसिपेशन इन जीडी वाज डिसेंट, थोड़ा सा और पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, तुम अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। तुम्हें अगर कोई नॉमिनेट कर रहा है ना तुम्हारे ग्रुप में, इट मींस दैट यू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, तुम्हारी बातें लोग सुनते हैं, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन में तुम्हारा फ्लो नहीं बन रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन में तुम्हें आइडियाज नहीं आए, जो डिस्कशन पॉइंट्स हुए वो उसमें तुम फंस सकते हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी वॉइस अच्छी थी, तुमने कंट्रीब्यूट किया, और तुम्हें ये लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, इनके नॉमिनेशन से पहले तुम किसी और को नॉमिनेट कर दो। उड़ता तीर लेने से अच्छा है कि किसी और को दे दो, भाई मेरा तो मैंने स्टोरी अच्छी कर ली है, मेरा नरेशन अच्छा है, मैं नहीं कर रहा। मैं बोल दो कि अनिकेत की वॉइस बहुत अच्छी थी, अनिकेत को बोल दो, ठीक है ना। अगर अनिकेत ने अच्छा कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो एक तुम्हारा कंपटीशन खत्म, खलास, बाय बाय, ठीक है। अनिकेत फिर जाके तुम्हें गाली देगा, भाई क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया भाई, मैंने तेरे को पर्सनल दुश्मनी थी क्या, है ना, ठीक है। क्योंकि फिर वो करण बोलेगा तेरा यार इंडिविजुअल नरेशन अच्छा लगा था, मैंने सोचा तेरे को यहीं पे निपटा देता हूँ, अंदर जाके तू एसएसबी में 30 जनों के बीच में तू कंपटीशन बनेगा मेरा, ठीक है ना, ठीक है। जीडी में थोड़ा सा और पार्टिसिपेट करो करण, है ना। प्रीति ये तुम्हारा फर्स्ट पीपीटीटी था कि इससे पहले पार्टिसिपेट किया है? नहीं सर, इससे पहले किया है। ठीक है ना। तो देखो इंडिविजुअल नरेशन में फ्लो ब्रेक हो रहा है, फिलर्स आ रहे हैं, बीच में आ रहा है, मग अप योर स्टोरीज। जितना अच्छा रट्टा मारोगे उतना अच्छा चांसेस होगा स्क्रीनिंग में। और लड़कियां, मैं बता रहा हूँ, लड़कियां स्पेशली, उनका तो रिकमेंडेशन ही स्क्रीनिंग टाइप होता है। तो ये स्क्रीनिंग तो तुम मतलब इसका तो क्या ही बात करूं, समझ आ रहा है। क्योंकि लड़कियों में वो खतरनाक क्वालिटीज होती है, दे आर गोइंग टू फाइट। अगर तुम ये जो स्क्रीनिंग है ना इसमें देखोगे, वो चीखती हुई तुम्हें दिखेंगी, तुम्हारे कान से खून निकल सकता है। अगर तुम वहां पे इनोसेंट बन के जाओगी तो वहां काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आपको सबसे पहला इंप्रेशन कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहला इंप्रेशन मिलेगा आपको 60 सेकंड्स का, जहां पे आप इंडिविजुअल नरेशन दोगे। तो इंडिविजुअल नरेशन में इंपैक्ट डालना है आपको। ऐसा वॉइस मॉड्यूलेशन करो, ऐसा फ्लुएंसी और क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन दो कि यार ऐसा लगे कि यार प्रीति चाहे स्टोरी इसकी कैसी भी हो, लेकिन मुझे इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे ये मुझे चाहिए, ठीक है। इसको अंदर लेके इसके 5 दिन टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन बेस्ट होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें हट जाएंगी, ठीक है ना। फिलर्स पे काम करो। यू स्पोक फॉर अराउंड 56 seconds. You also made a story related to teaching in a coaching. मतलब यू आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग, ठीक है। तुमने पता है क्या किया? तुम्हारी स्टोरी तो मुझे बहुत ही खतरनाक लगी। तुमने पहले उसे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई, एट द सेम टाइम शी स्टार्टेड टीचिंग,
अब मुझे ये नहीं बताया तुमने कि वो क्या पढ़ा रही थी, क्या वो सिविल एस्पिरेंट्स को ही पढ़ा रही थी, सिविल सर्विसेज वालों को ही, कि 9th-10th को अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए पढ़ा रही थी, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या किया, फिर उसको आईएएस ऑफिसर भी बना दिया। ये बताओ आईएएस ऑफिसर बनने में कितना साल लगता है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन फेज और मतलब बनने तक, लवासना जाने तक अलॉट लगता है ना। मिनिमम 1 ईयर की प्रिपरेशन लगेगी, वन ईयर का तो प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद नवासना में जाके तुम्हारी ट्रेनिंग भी होगी। कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है वहाँ? नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तो नॉट श्योर ना, तुमने उसको डीएम भी बना दिया था शायद, एसडीएम। और फिर तुमने अपनी सिटी में बुला और लिया। एसडीएम क्यों बनाया? वो एसडीएम बनते हैं क्या? मुझे नहीं पता, ठीक है ना। जो भी बनते हैं, तुमने फिर उनको अपनी सिटी में बुला लिया। एक काम करती हूँ, स्टेट पीसीएस से एसडीएम बनते हैं सर। हाँ, तो वही बोला, सीएससी यूपीएससी सीएससी से तुम डीएम बनोगे सीधा, है ना। तो समझ आ रहा है, तुमने एक ही स्टोरी में ना सब कुछ करा दिया। कोचिंग भी पढ़ा रही है बेचारी, यूपीएससी भी पढ़ रही थी, यूपीएससी क्लियर भी करा दिया, फिर एसडीएम बन के वो पुणे में भी आ गई। तो चीजें बैठ नहीं रही, तुम्हारे दिमाग में जो आया तुमने सब लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर फीलिंग्स, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर सिर्फ एक चीज बना सकते थे कि शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर दी लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है। शी क्लियर्ड थ्राइस प्रीलिम्स एंड 2 मेंस, तो उसके पास एक्सपीरियंस था। शी स्टार्टेड अ कोचिंग ऑन हर ओन, ठीक है। वो फिर सीएससी और उनको पढ़ाने लग गई, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज योर स्टोरी। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज करती है कोचिंग को, कैसे मेंटोर करती है स्टूडेंट्स को, कैसे वो फंड्स इकट्ठा करती है, रिसोर्सेज कैसे यूज करती है, उस पर तुम्हारी स्टोरी बन सकती है। तुम्हें डीएम वीएम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना प्रीति? ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। जीडी में तो बिल्कुल 0 पार्टिसिपेशन। तुम्हें मैंने बताया, लड़कियां चीखती हैं वहां पे, ठीक है। नो मर्सी, नोबडी इज गोइंग टू कम टू योर रेस्क्यू। वहां पर तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। चीखने पे कैसे आप करेंगे? चीखने पे तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें भी चीखना नहीं है। मैं बाकियों को बता रहा हूँ कि बाकी लोग चीखते हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी लोग चीखते हैं, तुम्हें नहीं चीखना है, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ठीक है, ये किसकी? रोहित की है ना, ठीक है। रोहित M26, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारी बॉक्स मार्किंग ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट प्लानिंग ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट में उसका नाम भी डाल दोगे तो और बेटर रहेगा। ये किसका है? प्रीति। प्रीति, सारे कैरेक्टर को इनसर्कल नहीं करना होता, ओनली 1 कैरेक्टर यू हैव टू इनसर्कल, ठीक है। प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस। जितने भी मैंने सेशंस की रिकॉर्डिंग भेजी है इन द ग्रुप, प्लीज गो थ्रू दोस वीडियोस, ठीक है। टुमारो ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू सर्कल ओनली 1 कैरेक्टर व्हिच ग्रैब्स योर अटेंशन और हु इज योर मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है ना। प्रोफेसर टीचिंग इन अ कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने प्रोफेसर टीचिंग इन अ कॉलेज बना रखी है, तुमने स्टोरी तो कुछ और सुनाई थी मुझे। ये क्या है? क्या है प्रीति? तो थोड़ा भूल गई थी तो कवर अप कर रही थी, ठीक है। ये ओवर कटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस मीन्स दैट यू डोंट हैव द क्लैरिटी, तुम्हारे थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है ना भाई। इनसर्कल कौन करेगा? एक कैरेक्टर को। ये किसका है? विभूम। हु इज गोइंग टू इनसर्कल द मेन कैरेक्टर, मेन प्रोटैगनिस्ट, ठीक है ना। वो करो अच्छे से, ठीक है। और ये अपना प्रोजेक्ट उसको ध्यान से दो, उसको इन्वॉल्व करवाओ कि वो जो भी प्रोजेक्ट बच्चों को दे रहा है उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहिए बंदा, ठीक है ना। ये बॉक्स मार्किंग ठीक है, चिराग की बॉक्स मार्किंग ठीक है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, भाई यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम भी बता दो, क्या पता तुम्हें 20 सेकंड के बाद कुछ बोलने का मौका मिले ना मिले, यू नेवर नो, ठीक है। ये बॉक्स मार्किंग भी ठीक है, चाहिए। ये कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर कटिंग। ये जो कटिंग है ना, ओवर राइटिंग है। एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर बोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर यू आर अननेसेसरली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी, तुम्हें तो ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत ना पड़े। लास्ट टाइम पे आके प्रेशर क्रिएट मत करो बच्चों पे कि बेटा आप एक काम करो, तुमसे तो नहीं हो पा रहा, एक काम करते हैं, एक क्लासेस लेते हैं, अब तुम्हें सुबह आना पड़ेगा। वो बेचारे अपनी तैयारी कर रहे थे, अब तुम्हें सुबह बुला रहे हो उनको, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेबल। माधवी की हैंडराइटिंग देखो, शानदार, ठीक है। बॉक्स मार्किंग अच्छी है, ठीक है। करियर काउंसलिंग स्टोरी भी अच्छी है, ठीक है। ऐसी कुछ स्टोरी लिखनी है, ठीक है ना। एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, सो प्लीज go through the recordings which I have provided you. Without those recordings, you won't be able to participate. You will make mistakes like these which you did today. ठीक है ना। तो this is my humble request. वरना मैं कल फिर कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊंगा, पीपीडीटी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये बार बार गलती होते नहीं देख सकता। यू आर मेकिंग स्टोरीज रिलेटेड टू सीडीएस प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। ये सब गलतियां मत करो, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स नहीं आने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन. Let's wrap up this session. We will meet tomorrow 7:30 a.m.
ठीक है ना? प्लीज सर मेरी भी बॉक्स मार्किंग एक बार देख लीजिए। कहाँ पे है तुम्हारा बॉक्स? मैं शेयर कर रहा हूँ सर। वो तो तुम खुद ही जज कर सकते हो यार। सर ये देखिए बार बार मेरे से एक लाइन में हो जाता है ये। तो वो एक लाइन में क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है गलती कर रहे हो? ठीक है, यू हैव टू एग्जैक्टली गिव द लोकेशन। जो लोकेशन ठीक है ये जो बॉक्स है ना, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स द पिक्चर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा बॉक्स मार्किंग में कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम सर। या एनीथिंग एल्स एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस माधवी। भैया एक बार वो बताइए कैसे लिखना होता है, उसमें क्या क्या नहीं करना है जो हम पीपीडीटी में कर रहे हैं? देखो टैग में, देखो पीपीडीटी में तुम्हारे को बॉक्स मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, एक्शन पार्ट नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा डायरेक्टली यू विल गेट यू लाइक पिक्चर विल बी फ्लैश फॉर 30 सेकंड्स एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 4 मिनट्स। ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐसे तुम्हें 12 स्टोरीज लिखनी है। ठीक है ना? ऐसे चलेगा। भैया उसमें एक्शन नहीं लिखना होता? एक्शन मतलब वो जो ऊपर टाइटल लिखते हैं ना हम लोग कि ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो वाला एक्शन नहीं लिखना होता। स्टोरी में तो तुम्हें एक्शन लिखना ही पड़ेगा, बहुत स्टोरी सारे में तो एक्शंस लिखना लिखने पड़ेंगे। या ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीवन? Okay then, if you don't have any doubt, we'll meet tomorrow 7:30 am.